اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 191 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا اللہ کی ذات نے مسلمانوں کو اس چیز کی اجازت دی تھی جو مکہ میں اجازت نہیں تھی، اب مدینہ میں اجازت دی کہ آپ اپنے دفاع میں لڑ سکتے ہیں، کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، لیکن زیادتی نہیں کرنی، حد سے آگے نہیں بڑھنا۔ اگر کوئی سامنے سے تلوار اٹھاتا ہے، لڑتا ہے، اس سے لڑنا ہے، جو نہیں اٹھاتا اس کے ساتھ نہیں لڑنا۔ عورتیں، بچے، بوڑھے جیسے ہوتے ہیں ان کے ساتھ نہیں لڑنا۔ تو اللہ کی ذات مسلمانوں کو قتال فی سبیل اللہ کے طریقے سے سکھا رہی ہے کہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو اپنے دفاع میں، اپنی ضرورت میں اب آپ اپنا دفاع کر سکتے ہیں اور اب بدلہ لینے کی اجازت ہے۔ اللہ کی ذات فرما رہی ہے وَاقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو ان کو، حیثو، جہاں پہ، ثقفتموہم، پو ان کو۔ اب انہوں نے مکہ سے آپ کو نکالا ہے، پھر بھی اپنی سازشوں سے باز نہیں آ رہے۔ غزوہ بدر ہوئی، غزوہ احد ہوئی، غزوہ خندق ہوئی۔ اللہ کی ذات فرما رہی ہے اب حکم آ گیا جب فتح مکہ کے قریب کا، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جہاں ملیں کافر، اللہ کے نافرمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، دین کے دشمن، ان کو قتل کرو جہاں پاؤ۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ، اور نکالو ان کو اس جگہ سے، اخرجوکم، جہاں سے تم کو نکالا تھا۔ مکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اللہ کا نام لینے پہ، اس دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے، لا الہ پڑھانے کے لیے دشمنیاں کر کے وہاں سے نکالا، ورنہ اس سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہ رہے تھے اور آپ کو صادق امین کہتے تھے، آپ سے فیصلہ کروایا کرتے تھے، آپ کے ساتھ محبت بھی کرتے تھے۔ لیکن جب آپ نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی کہ ایک اللہ کو مانو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو، تو سب کے سب ناراض ہو گئے اس بات سے۔ تو جس شہر سے تمہیں انہوں نے نکالا ہے اس سے تم بھی ان کو نکالو، اور پھر اللہ نے فتح مکہ عطا فرمائی۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اللہ کی ذات فرما رہی ہے یہ جو فتنہ ہے، یہ جو کفر ہے، یہ جو ظلم ہے، یہ جو شرک ہے، یہ کسی کو قتل کرنے سے، کسی کے ساتھ لڑائی کرنے سے زیادہ خطرناک چیز ہے۔ ظلم پہ معاشرہ قائم نہیں رہتا، شرک پہ معاشرے قائم نہیں رہتے، اللہ کی ناراضگی کو مول لیا جاتا ہے، ظلم پہ معاشرے قائم نہیں ہوتے۔ اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ یہ زیادہ سخت ہے توحید کے ساتھ شرک کو ملانا، ظلم کرنا لوگوں کے ساتھ، لوگوں کو دین سے گمراہ کرنا، لوگوں کو دین سے روکنا اور دین کے خلاف سازشیں کرنا۔ اللہ کی ذات فرما رہی ہے یہ زیادہ بری بات ہے، یہ زیادہ سخت ہے اللہ کے ہاں اس عمل سے کہ ان کے ساتھ لڑا جائے، ان کے ساتھ خون ریزی کی جائے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور نہ ان کو قتل کرو، ان کے ساتھ لڑائی نہ کرو مسجد حرام۔ اس کی حرمت جو ہے وہ پرانی چلی آ رہی ہے، تو اللہ کی ذات یہاں بھی فرما رہی ہے کہ مسجد حرام میں اگر وہ جاتے ہیں، وہاں پہ آپ نے لڑائی کرنی، اس کی حرمت کو برقرار رکھنا ہے۔ حتیٰ، یہاں تک کہ یقاتلوکم فی، وہ تمہیں مسجد حرام میں تمہارے ساتھ لڑیں۔ اگر وہاں پہ بھی حدود حرم میں وہ تلوار نکالیں اور تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر اس شرط پہ تمہیں اجازت ہے، ورنہ پہلے آپ ان کا پیچھا کرتے ہوئے نہیں جا سکتے ان کے ساتھ کہ آپ ان کو قتل کریں، وہاں پہ ان کے ساتھ لڑیں کہ بھاگتے بھاگتے وہ حدود حرم میں چلے گئے، مسجد حرم میں چلے گئے۔ لیکن اگر وہ وہاں لڑیں آپ سے تو پھر اجازت ہے۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پس اگر وہ لڑیں آپ سے تو آپ ان سے لڑیں، اگر وہ نہیں لڑتے تو خانہ کعبہ کی حرمت جو ہے اس کو قائم رکھنا ہے، وہاں پہ نہیں لڑنا۔ کذالک، یہی ہے، اسی طرح ہے، جزاء الکافرین، کافروں کی جزا، کافروں کی سزا اور ان کے ساتھ بدلہ یہی ہے۔ اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا پہنچانے والے، وطن سے نکالنے والے، ایمان کو وطن کے نکالنے والوں کے لیے اللہ کی ذات فرما رہی یہی ان کی سزا ہے، یہی ان کا بدلہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔
फ़इन तहौ फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह की ज़ात फिर भी देखेंगे इतनी करीम ज़ात है। इन काफिरों को जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर से निकाला, ईमान वालों को घर से निकाला, उनकी जायदादों पे कब्ज़ा कर लिया और निकलते हुए बेसरो सामान निकले, इनके ऊपर फिर भी अल्लाह की ज़ात इंसानों पे इतनी मेहरबान है। रब फरमा रहे हैं कि अगर ये बाज आ जाएं, आज भी तुम्हारे साथ अगर लड़ाई ना करें तब भी इनके साथ लड़ाई नहीं करनी, और अगर ईमान ले आएँ तो ये तुम्हारे भाई हैं। फ़इन तहू, अगर ये रुक जाएं अपनी जुल्म से, कुफ्र से, शिरक से, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो रेशा दवानियाँ कर रहे हैं उससे अगर ये रुक जाते हैं तो अल्लाह की ज़ात बख्शने वाली, अल्लाह फिर भी इनको बख्श देगा। आप देख लें अल्लाह की ज़ात कितनी गफ़ूर और रहीम ज़ात है, लेकिन शर्त यह है कि उसके साथ राब्ता रहे, उसके साथ उसके रास्ते पे चला जाए, जो उसने हुक्म दिया उसको पूरा किया जाए। अल्लाह की ज़ात बख्शने वाली है। ऐसे काफिरों को भी अगर वो दीन कबूल कर लें अल्लाह की ज़ात बख्श देगी। अल्लाह की ज़ात खुद गारंटी दे रही है। तो क्या आज मुसलमान अगर तौबा करता है, अपनी पिछली ज़िंदगी जो उसने गुनाहों की गुजारी है उससे तौबा करता है, आगे सही ज़िंदगी गुजारता है, कुरान को समझता है, हदीस को समझता है, उसके मुताबिक अपनी इबादत, मामलात, मुआशियात सब को ले आता है, तो अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। ऐसे काफिरों को भी अल्लाह की ज़ात फरमा रही है कि अल्लाह गफूर और रहीम है। वक़ातिलूहुम, और लड़ो उनसे, हत्ता यहाँ तक के ला तकूना, न रहे फितनतन, फितना। अल्लाह की ज़ात कह रही है कि इन मुशरिकीन के साथ लड़ो, और लड़ने का मकसद बता रही है कि उस वक़्त तक इनके साथ लड़ाई करनी है जब तक कि फितना बाकी है, जब तक कि कुफ्र बाकी है, जब तक जुल्म बाकी है, अल्लाह की नाफरमानियाँ बाकी हैं, शिरक बाकी है, उस वक़्त तक लड़ना है। अगर ये आगे उस शिरक से तौबा कर ली इन्होंने, फिर इनके साथ नहीं लड़ना। व यकून दीन लिल्लाह, और कायम हो जाए अल्लाह का दीन। ये है असल बुनियाद इस्लाम के लिए कि अगर किसी के ख़िलाफ़ तलवार उठानी है, उसके साथ लड़ना पड़ना है, तो लड़ने के लिए शर्त यह है कि वो ख़ुद लड़े, तो तब लड़ना है। जो मुसलमान के ख़िलाफ़ तलवार नहीं उठाएगा, आगे से सामने नहीं आएगा, उसके साथ नहीं लड़ना है। ख़्वाह वो जवान है, बूढ़ा है, कोई भी है, जो लड़ेगा आगे से वो लड़ाई उसके साथ होगी। और हरम में भी लड़ाई नहीं करनी, लेकिन अगर वो लड़ाई करेंगे तो फिर अल्लाह की ज़ात ने इजाज़त दी मुसलमानों को भी अपने दिफा में उनके साथ लड़ने के लिए, उनको कत्ल करने के लिए। लेकिन इस सारी लड़ाई का जो क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह है, अल्लाह की ज़ात फरमा रही है व यकून दीन लिल्लाह, दीन की सरबुलंदी के लिए, दीन को कायम करने के लिए, दीन के दिफा के लिए। इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है। ना माल गनीमत इकट्ठा करना मकसद है, ना अपनी सल्तनत को बढ़ाना इसका मकसद है, ना अपना रूब दबदबा कायम करना इसका मकसद है। सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अल्लाह के दीन का गलबा हो जाए, उन लोगों के सामने भी अल्लाह का दीन पेश किया जाए और वो दीन को कबूल करें उसके सामने। और किसी मकसद के लिए क़िताल और किसी के साथ ज़्यादती, किसी के साथ लड़ाई क़यामत तक के लिए अल्लाह ने कह दिया है इस कुरान के अंदर, वो जायज़ नहीं है। लेकिन इकामत दीन के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए, और कहीं पे अगर दीन को ख़तरा है तो उसके दिफा के लिए कि मुसलमानों के कोई कहीं पे जीना उनके लिए मुश्किल हो गया और वो कहीं के कमज़ोर हैं, तो उनके दिफा के लिए ये लड़ना जायज़ है। कातिलू हत्ता ला तकून फितना। और एक तो ये जुल्म ख़त्म हो जाए दुनिया में से, शिरक ख़त्म हो जाए और अल्लाह का दीन बुलंद हो, अल्लाह का दीन सरबुलंद हो। फ़इन तहू, अगर वो बाज आ जाएँ, फ़ला उद्वाना, तो बस ए ईमान वालों ज़्यादती नहीं करनी उन पे, तशद्दुद नहीं करना उन पे, इल्ला अलज़्ज़ालिमीन, मगर सिर्फ़ उन लोगों के साथ जो ज़ालिम हैं, जो नाफरमान है। ज़ालिम कौन होता है? जो अदल नहीं करता। अदल क्या है? अल्लाह को एक मानना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करना, आपको आखिरी नबी मानना, अल्लाह का रसूल मानना, और आपकी तालीमात पे, इस कुरान की तालीमात पे अमल करना, तमाम की तमाम चीज़ों पे अमल करने की कोशिश करना, ये है अदल। और अगर इसके मुखालिफ जाते हैं, शिरक करते हैं, कुरान को नहीं मानते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल नहीं मानते, आपकी बातों को हक़ नहीं मानते, अल्लाह की तरफ से नहीं मानते, ये सारे का सारा जुल्म है। अल्लाह की ज़ात फरमा रही है कि जो इस जुल्म से बाज आ जाएं उनके साथ कोई लड़ाई नहीं है, और बाज आ जाएं। अल्लाह जब बख्शने के लिए तैयार है तो फिर इंसान की क्या मजाल रहती है। लेकिन जो इससे बाज नहीं आता, मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें करता है,
मुसलमानों को ख़त्म करने की कोशिश करता है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात को उन्होंने प्लान किया था कत्ल करने के लिए, फिर अल्लाह ने हुक्म दे दिया आपको हिजरत के लिए, बाकी मुसलमानों को भी रहना मुश्किल हो गया था। ये साजिशें अगर कर रहे हैं तो फिर उनको ज़रूर रोकें। अगर वो ये साजिशें नहीं करते, इससे बाज आ जाते हैं, अल्लाह भी उनको बख्शने के लिए तैयार है। और ए ईमान वालों, आपने उनके साथ कोई ज़्यादती नहीं करनी, उनके ऊपर कोई जुल्म नहीं करना, सिवाय उन लोगों के कि जो आपके साथ भी लड़ते हैं, आपके साथ जुल्म करते हैं, दीन के दुश्मनों के साथ। सिर्फ़ और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन के दुश्मनों के साथ लड़ना है, बाकी किसी के साथ नहीं लड़ना, किसी के साथ ज़्यादती नहीं करनी। जो कुछ हमने सही सही पढ़ा, अल्लाह हमारे ज़हनों में, दिलों में बिठा दें। जहाँ जहाँ पढ़ते हुए बोलते हैं हमसे गलतियाँ हुई, अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे और उन गलत बातों को हमारे ज़हनों से, दिलों से अल्लाह की ज़ात निकाल दे।